guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. I am Chitrika and I make videos about life in Poland vlogs and stuff like that. But मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, so excuse me for that. If you don't know already, I live in Poland and I have been living in Poland for almost about 9 to 10 months now with my husband. And today's video is all about 10 cultural shocks that we faced after moving to Poland from India. Like any other person who moves out of their country and they face a cultural shock, तो वैसे ही हम लोग को भी बहुत सारे cultural shocks यहाँ पे आके लगे थे. So I just wanted to tell you guys about those. Some of them are really funny also. So yes, if you are planning to come to Poland anytime soon, this will be informative for you. So if you want to know the top 10 cultural shocks that I faced after moving to Poland, then keep on watching. By the way, मैंने इतने सारे notes अपने phone पे बना के रखे हैं on WhatsApp, so I just noted down all the things that I could remember of कि यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें काफ़ी different लगी थी और weird लगी थी. So yeah, let's start with the number one. So the number one culture shock that I faced after coming to Poland is कि यहाँ पे Sunday को सब कुछ बंद रहता है. Everything is shut. Like malls are closed, stores are closed, everything is closed literally. सिर्फ ज़ापका खुलता है. So ज़ापका is a convenience store जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है खाने पीने का. So just that is open, but that is also pretty expensive. उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं खुलता है Sunday को. So it is very very annoying because being an Indian, like we are so used to stepping out on Sundays shopping के लिए, या फिर मूवी देखने जाते थे हम लोग इंडिया में, या फिर कुछ भी करना होता तो वी यूज्ड टू गो एंड स्टेप आउट ऑन संडे. बट यहाँ पे संडे सब कुछ बंद रहता है. एंड उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ के लोगों को ना अपना संडे काफी रिलैक्स वे में स्पेंड करना पसंद है. दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग ऑन संडे एक्सेप्ट रिलैक्सिंग एंड चिलिंग मे बी एट होम. सो या, दिस वाज वन थिंग दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अडैप्ट टू इन द बिगिनिंग because Sunday is like I want to go out, I want to explore things and everything is closed. But over time I have gotten used to it and अब मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, Sunday is a relaxed day. So Monday to Saturday बहुत ज़्यादा मैं काम करती हूँ and Sunday को मैं एकदम relax करती हूँ. So the second biggest shock that I got after coming to Poland is people smoking like anything, left, right, center. यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा smoking करते हैं. Smoking culture is like so evident here. You will find everybody smoking around. तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो it was like so shocking for me. I was like कि like you see college going students या you see any women, men, हर कोई स्मोक कर रहा है और ऐसे ही खुले में मतलब रोड पे चलते हुए they are smoking and it is so common and usual here कि किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है. मतलब लोगों के लिए वो बहुत ही ऐसे है कि हाँ, क्या हो गया, स्मोक ही तो कर रहे हैं. बट कमिंग फ्रॉम इंडिया आई फील ये थोड़ा सा मेरे लिए वियर्ड था व्हेन आई सॉ कि यहाँ पे लोग इतना ओपनली कैसे स्मोक कर रहे हैं. बिकॉज इंडिया में भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो मोस्टली छुप छुप के स्मोकिंग करते हैं ताकि किसी को दिखे ना, बिकॉज वहाँ पे स्मोकिंग को थोड़ा खराब माना जाता है. बट यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक दैट. You can openly smoke, you can smoke anywhere you want, especially in the smoking zones, अगर आप किसी मॉल वगैरह के अंदर हो. But yeah, that was like literally a big culture shock. So anywhere you go, you'll find people smoking. So if you are going to come to Poland and if you see this, don't be shocked. So the third culture shock that I had to face is कि यहाँ पे ना आपको हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपका जब मन करे जहाँ मन करे आप उठ के चले जाओ. सो लेट्स से अगर आपको सैलून में जाना है, अपने हेयर कट कराना है या शेविंग करानी है या आपको कुछ भी कराना है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. और ज़रूरी नहीं है आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल जाए. तो अगर आप आज जा रहे हो तो हो सकता है आपको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिले. एंड इट्स द सेम विद हॉस्पिटल्स. इफ़ यू आर सिक और आपको कोई चोट लग गई है या फिर कुछ भी हो गया है और आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना है किसी भी चीज़ के लिए, चेकअप के लिए, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. यू हैव टू कॉल देम, यू हैव टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट एंड देन यू हैव टू गो. सो दैट इज लाइक अ वेरी बिग चेंज फॉर अस. बिकॉज इंडिया में तो कुछ भी होता था तो ऐसे ही कहीं पे भी, मतलब हर गली में तो वहाँ पे क्लिनिक होता है, तो आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत ही मतलब एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है और आपको वो ही फॉलो करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो बी रेडी फॉर इट इफ यू आर मूविंग टू पोलैंड. ओके, सो मूविंग टू नंबर 4 विच इज द ट्रैफिक रूल्स. तो यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा शॉक था. बिकॉज इंडिया में क्या होता है ना, जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे सिर्फ व्हीकल्स के लिए ही रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है. बट यहाँ पे हर किसी के लिए रेड और ग्रीन लाइट होती है. सो इवन इफ यू आर अ पेडेस्ट्रियन और अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो अगर रेड लाइट है तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो. एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन ओनली देन यू कैन क्रॉस द रोड. अनदर थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट पोलैंड इज की, आई थिंक और भी यूरोपियन कंट्रीज में ये है, वो ये है कि अगर आप पेडेस्ट्रियन हो और वहाँ पे रेड लाइट नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द रोड ना, तो जो गाड़ी वाला है वो
आगे नहीं जाएगा, मतलब he will stop for you, you first cross the road and then they will go. So this is like so good. I really like that they respect the pedestrians here. एंड ये इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आप रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई भी चढ़ा के चले जाएगा आपके ऊपर से, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय द मोस्ट. और मेरे साथ स्टार्टिंग में ना बहुत बार ऐसे मजाक टाइप का हो जाता था. सिंस हम लोग इंडिया से आए तो बहुत ज्यादा वो हार्ड वायर्ड होता है ना आपके ब्रेन में कि आपको रोड क्रॉस करनी है तो यू हैव टू लुक लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन क्रॉस. बट यहाँ पे जब मैं आई तो शुरुआत में मैं ऐसे रोड क्रॉस कर रही होती थी और फिर मैं लेफ्ट राइट देखती थी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो गाड़ियां भी बहुत कम है, बट कई बार क्या होता था कि मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और सामने से गाड़ी आ रही होती थी तो मैं रुक जाती थी, बट देन वो गाड़ी वाला भी रुक जाता था. एंड आई एम लाइक, देन आई यूज टू रियलाइज कि अच्छा नहीं, मुझे पहले क्रॉस करना है एंड देन दे विल गो. सो हाँ, अब तो मुझे काफी प्रैक्टिस हो गई है इतने 8-9 महीने से यहाँ पे रह के. सो अब मुझे उतना वियर्ड नहीं लगता, पर पहले मुझे काफी लगता था कि ये क्या है. बट येस, दिस इज समथिंग दैट यू विल एंजॉय इफ यू आर कमिंग टू पोलैंड. दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर ट्रैफिक रूल्स. ओके, नंबर 5. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कल्चर शॉक्स दैट आई फेस्ड. तो वो ये है कि यहाँ पे ना आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी. सो बेसिकली आप ट्रैम में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, सो पीपल आर वेरी क्वाइट हियर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट इवन सी देम स्क्रोलिंग ऑन देयर फोन एंड एवरीथिंग. तो वो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आराम से बस में है तो वो बस में बैठे हैं, दे आर लुकिंग आउटसाइड, दे आर जस्ट लुकिंग एट पीपल अराउंड देम. As Indians, we are like so always in our phones and we are scrolling all the time. But यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि लोग काफ़ी ज़्यादा mindful हैं. Even when they are traveling, they are not on their phones and stuff. And दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग इतने शांत रहते हैं, like nobody talks in the public transport. That is so weird. So इसके साथ एक बहुत funny incident भी हुआ था. So when we came here initially, हम लोग एक बार grocery shopping के लिए जा रहे थे. So me, Ankit and one of our friend. As Indians, हम लोगों को तो हर जगह ऐसे गप्पे मारने की आदत होती है ना. So अगर आप बस में जा रहे हो तो आप गप्पे मारोगे या कहीं भी जा रहे हो. सो हम लोग बस पे चढ़े और फिर हम लोग ऐसे ही किसी टॉपिक पे ऐसे डिस्कशन करने लग गए कि क्या है क्या नहीं है. एंड सडनली लाइक हम लोग का जो पिच रहता है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहता है इंडियंस का. तो वी वर टॉकिंग एंड एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग एट अस एंड आई एम लाइक शिट, इट वाज सो एम्बैरेसिंग. एंड देन आई टोल्ड अंकित कि थोड़ा धीरे बोलो एंड देन समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, दे डोंट एंटरटेन इफ यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो दैट इज समथिंग आई थिंक इट्स एक्चुअली गुड ओनली. बट हाँ, हम लोग की तो आदत होती है कि हमें गप्पे मारे बिना मजा नहीं आता. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाइक लेट्स से मी एंड अंकित वी आर बोथ इन द ट्रैम, तो हम लोग ना हमेशा अलग अलग सीट ले लेते हैं. ऐसा होता है कि हम लोग को आदत ही है ना बात करने की. तो जैसे कभी हम जा रहे हैं तो हमें आदत होती है कि हमें मतलब बात करनी है, किसी बात पे टॉपिक पे डिस्कशन करना है. बट वो कई बार अच्छा नहीं होता है बिकॉज द पीपल अराउंड यू आर डिस्टर्ब्ड. सो व्हाट वी डू इज वी टेक डिफरेंट सीट्स और हम चुपचाप बैठ के जाते हैं. एंड व्हेन वी गेट आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वी कैन टॉक. सो या दैट इज समथिंग दैट इज अगेन अ बिग शॉक. मूविंग ऑन टू नंबर 6, ये भी थोड़ा सा वियर्ड है. सो यहाँ पे ना लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं. सो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मैं आपसे शेयर करूंगी. सो एक बार हम लोग डिकैथलॉन में गए थे, रात के 9 बज गए थे और 9 बजे ना यहाँ पे मोस्टली सारे स्टोर्स बंद हो जाते हैं. तो यहाँ पे ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि अगर हम लेट्स से हम किसी दुकान के अंदर गए और वहाँ पे हम कुछ खरीद रहे हैं तो दुकानदार वो दुकान खोल के रखेगा जब तक कि उसकी बिक्री ना हो जाए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे दीज पीपल आर लाइक वेरी पर्टिकुलर. अगर 9 बजा है तो मतलब 9 बजे बंद हो जाएगा. इनफैक्ट वो लोग 9 बजे से ना थोड़ा पहले ही शुरू कर देते हैं कि रैप अप करना चीजें. सो हम लोग एक बार डिकैथलॉन में थे एंड वी वर शॉपिंग समथिंग एंड वी एक्चुअली वेंट क्वाइट लेट. तो हम लोग आई थिंक पहुंचे ही 8-8:30 बजे थे. तो शॉपिंग करते करते हमें ऑलमोस्ट 9 बज गया था. एंड सडनली अ गाय केम एंड ही स्टार्टेड येलिंग एट अस कि रैप अप फास्ट एंड वी आर शटिंग, वी आर क्लोजिंग एंड वी वर लाइक हाफ वे शॉपिंग. तो हम फिर आधा छोड़ के जो भी हमने सामान उठाया वी जस्ट बिल्ड इट एंड वी केम आउट. सो दिस वॉज लिटिल वियर्ड बिकॉज ऐसा मैंने इंडिया में तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. और यहाँ पे मैंने काफी बार ये चीज एक्सपीरियंस किया. अगर आप किसी मॉल में हो या फिर आप किसी भी स्टोर में हो तो वो 9 बजे के बाद 9, 9:30 आई थिंक मैक्सिमम दे विल नॉट एंटरटेन यू आफ्टर दैट बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम. दे डोंट केयर कि आपको कितना सामान खरीदना है, क्या खरीदना है. उनको बंद करना है 9 बजे तो वो बंद करके चले जाएंगे. दे डोंट केयर. सो दिस इज समथिंग वियर्ड हियर. एंड दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे बहुत ही टाइम के लिए लोग पंक्चुअल है. लाइक इवन ट्रैम्स में, बसेस में अगर आप ट्रैवल करोगे ना, इट कम्स ऑन टाइम और वो टाइम पे ही डिपार्ट भी हो जाती है. सो लेट्स से कि अगर आपको कोई ट्रैम पकड़नी है एंड आप दूर से ऐसे भाग के आ रहे हो तो जरूरी नहीं है ट्रैम का जो पायलट है वो आपके लिए ट्रैम रोक देगा बिकॉज वो बहुत टाइम से चलते हैं एंड देयर इज नो डिले. इंडिया में तो कैसे होता है ना कि अगर हम कोई बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कंडक्टर भैया को बोल देते हैं कि भैया 1 मिनट रोक दो, अभी आ रहे हैं. या फिर कोई लेट हो जाता है तो हम उसके लिए रुकवा देते हैं बस. तो यहाँ पे वो सब नहीं है. दे
are very very particular. So yes, you have to be on time, otherwise you lose. So yeah, that is there. Actually मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था. तो मैंने एक दिन हॉस्पिटल में एक अपॉइंटमेंट लिया एंड मैंने गलती से ना दूसरी ट्रैम पकड़ ली. मीन्स यहाँ पे एक्चुअली एक तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश हर जगह पे नहीं लिखी रहती है. सो आपको मतलब पोलिश में ही लिखा रहेगा. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने जिस डेस्टिनेशन पे मुझे जाना था मैंने उसकी जगह दूसरी डेस्टिनेशन की ट्रैम ले ली बाय मिस्टेक एंड मेरा अपॉइंटमेंट लेट हो गया ऑब्वियसली. सो मेरा आई थिंक मॉर्निंग में 10:15 का अपॉइंटमेंट था और मुझे थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि मैं गलत ट्रैम में बैठ गई हूँ. तो जब तक मैं ट्रैम चेंज करके दूसरे स्टेशन पहुंचती तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका था. एंड आई कॉल्ड द हॉस्पिटल एंड आई आस्क्ड देम कि कैन आई कम नाउ, and they strictly said no. They're like, no, you have to rebook your appointment and all of that. So yes, they will not entertain you if you're late. तो yes, यहाँ पे ये चीज़ एक है जो बहुत आई थिंक ये एक काइंड ऑफ अच्छा ही है. मतलब हमारी इंडियंस की आदत होती है कि हम लोग बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं होते हैं. तो उस वे में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एक चीज़ है कि टाइम से करो, अदरवाइज भाड़ में जाओ. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस वन. सो यहाँ पे रात को 10 बजे के बाद बहुत शांति हो जाती है. आपको कोई भी शोरगुल हल्ला गुल्ला कुछ सुनने को नहीं मिलेगा एंड पीपल आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट. अगर उनको अपने अड़ोस पड़ोस वालों से अगर थोड़ा सा भी हल्ला या ऐसे नॉइजेज आती हैं, सो दे एक्चुअली दे कैन इवन कॉल द पुलिस. ओके, सो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के नेक्स्ट वीक ही ना हमारे नेबर ने हमारे डोर पे ऐसे नोटिस लगाया था और मैंने सोचा कि उसका एक क्लिप लेके मैं यहाँ पे डाल देती हूँ टू लेट यू गाइज नो कि यहाँ पे लोग कितना सीरियसली लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि रात को 10 या 11 बजे के बाद कोई भी वॉशिंग मशीन की साउंड नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा ज़ोर से म्यूज़िक या फिर किसी के भी बोलने की साउंड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग पुलिस भी बुला सकते हैं. सो हमारे साथ क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले IPL चल रहा था. तो IPL का फाइनल था. तो यहाँ पे रात हो चुकी थी. आई थिंक 10-11 बज गए थे एंड उस दिन CSK won the match, right? तो अंकित was watching the match and he was supporting CSK. तो he was like very pumped up और वो बहुत ही ऐसे मतलब उसने तेज वॉल्यूम में TV चला रखा था एंड उसको रियलाइज नहीं हुआ कि 11 बज गए. एंड सडनली क्या हुआ कि जैसे ही मतलब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, वो सब हुआ, मैन ऑफ द मैच एंड ऑल ऑफ दैट, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड लाइक क्लैपिंग एंड ऑल ऑफ दैट. देन सडनली ना हमारी डोरबेल बजी और उस समय 11 बज चुके थे मेरे ख्याल से. तो डोरबेल बजी एंड देन वी सडनली रियलाइज कि यार बहुत तेज वॉल्यूम है TV की. तो आई थिंक जो हमारे बगल वाले थे they were getting disturbed and they came and they rang our doorbell and we got like so scared. I was like मैं तो नहीं खोलूंगी दरवाजा and then हम दोनों ने ही दरवाजा नहीं खोला. We just immediately turned off the TV and we didn't do anything and then I think they left after that. ऑल्सो एक बार और हमारे साथ ऐसा हुआ. सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज लीविंग टू इंडिया, शी वॉज परमानेंटली मूविंग आउट. तो हम ना उसको हेल्प करने के लिए गए थे. उसका लास्ट डे था उसके अपार्टमेंट में. सो वी वेंट देयर, वी वर पैकिंग हर स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट एंड वी वर टॉकिंग. मतलब इंडियंस की आदत होती है वैसे भी तेज थोड़ा ऊंची आवाज में बात करने की. तो हम लोग अपनी ऐसे गप्पे वप्पे मार रहे थे एंड सडनली ना उसके बगल वाले अपार्टमेंट से किसी ने ऐसे नॉक करना शुरू कर दिया ऑन द वॉल. सो लिटरली मतलब वो वॉल पे नॉक करना शुरू कर दिया उन लोगों ने और ऐसे ठक 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 इस टाइप से आवाज आ रही थी हम लोगों को. सो देन वी रियलाइज कि हमारी वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है एंड दीज गाइज आर गेटिंग डिस्टर्ब. सो यहाँ पे ये चीज ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कि नो हल्ला गुल्ला आफ्टर 10 o'clock, even I think after 9 o'clock. So they are very very particular about it. So if you are coming to Poland, I think you have to be very quiet after 10. Otherwise हो सकता है कि ये लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं एंड दे इवन कॉल द पुलिस एंड ऑल इफ it is something repeatedly happening. So yeah, that is one thing. So moving on to number 8, this is about the language. So मुझे ये चीज में बहुत डिफिकल्टी हुई and it was a big shock for me. So like in India हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ लिखा होता है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में भी आपको उसका ट्रांसलेशन लिखा होगा. बट यहाँ पे जैसे भी आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो जो फूड लेबल्स होते हैं, राइट, लेट्स से आपने कुछ आइटम उठाया खाने का, तो उसके पैकेट में ना आपको कभी भी इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं दिखेगा. जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है वो भी पोलिश में लिखी होती है और मतलब हर चीज पोलिश में ही लिखी होती है. सो दिस वाज रियली वियर्ड. आई वाज लाइक यार मतलब तुम्हारी कंट्री में इतने सारे बाहर से भी लोग आ रहे हैं. इंग्लिश इज अ वेरी वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, सो व्हाई कांट you have English as well, बट यहाँ पे नहीं होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप बिगनिंग में आते हो. तो मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई व्हेन वी केम हियर. तो हम लोग जाते थे ग्रोसरी स्टोर में लेने के लिए, तो हर चीज़ में आपको मतलब लेबल पढ़ना है, तो अब इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको हर चीज़ ट्रांसलेट करनी पड़ेगी. कुछ टाइम के बाद आदत हो जाती है, बट दिस इज समथिंग लाइक वेरी अनोइंग. सो या आई थिंक दिस इज वन बिग शॉक दैट आई गॉट आफ्टर कमिंग हियर. आप कहीं पे भी और भी जाओगे ना, लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग या फिर साइन बोर्ड्स हैं या कहीं पे भी जाओगे, मॉल्स में भी किसी स्टोर का नाम है तो कभी भी आपको इंग्लिश में नहीं दिखेगा. इट्स ऑलवेज इन पोलिश. So I don't know why it is like that, because we have so many people from expats living here in Poland, but still these guys have everything in Polish. Yeah, I really don't know, but this is something that annoys me a bit.
ओके, सो द नंबर 9 कल्चर शॉक इज लाइक लिटिल वियर्ड. सो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, राइट. सो जो जिम का वॉशरूम होता है या चेंजिंग रूम होता है ना, वहाँ पे लोग लाइक सबके सामने कपड़े चेंज करते हैं. एंड इट इज सो वियर्ड बीइंग एन इंडियन, क्योंकि हम लोग ऐसे आदत नहीं है कि आप किसी को ऐसे पूरा मतलब यू नो विदाउट क्लोथ्स आप देख रहे हो. सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन हियर. इवन आई हर्ड इट फ्रॉम अंकित. सो अंकित यूज टू गो टू स्विमिंग क्लासेस और उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे जब स्विमिंग क्लास के बाद वो जाता था वॉशरूम में चेंज करने के लिए ना, तो वहाँ पे जो जेंट्स होते थे वो लोग प्रॉपर लाइक दे वर कंप्लीटली विदाउट क्लोथ्स. एंड इट यूज टू फील सो वियर्ड. मतलब मैंने तो ऑब्वियसली नहीं देखा, उसने देखा होगा. यहाँ पे लोग लाइक दे आर सो कंफर्टेबल विद देयर बॉडीज एंड दे डोंट हैव एनी शेम. सो उनको लगता है कि हाँ सबकी बॉडी सेम ही तो है, तो इसमें छुपाने वाला क्या है. तो वो लोग मतलब प्रॉपरली दे जस्ट ओपन देयर क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ everyone and they are like so comfortable with it. Even if you go to like sauna, gym or anywhere, you'll find people like this. So this was a very big culture shock because as Indians we are like so conditioned to cover our body parts. मतलब हर चीज कवर करके रखनी है, कुछ दिखना नहीं चाहिए एंड दिस एंड दैट. बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आई थिंक विद टाइम आदत हो जाती है. अभी तक वैसे मुझे आदत हुई नहीं है. अभी भी मैं जब जिम जाती हूँ तो वॉशरूम में लड़कियां ऐसे ही आराम से कपड़े वपड़े खोल के घूम रही होती हैं. सो दिस इज लिटिल वियर्ड समटाइम्स बट यू विल नॉट फाइंड एवरीबडी लाइक दैट. मतलब ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस बट mostly यहाँ पे people are very comfortable with their you know bodies and they don't have any shame like that. Okay, so moving on to the last one for the day. So number 10th culture shock जो मुझे यहाँ आके पता चला वो ये है कि यहाँ पे लोग ना काफी टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, वो शादी नहीं करते एंड उनके बच्चे हो जाते हैं एंड दे हैव लाइक किड्स, ग्रोन अप किड्स. Maybe some people also have kids like 11-12 years old and उसके बाद जाके अगर उनको लगता है कि हाँ हमें शादी करनी चाहिए तो वो शादी करते हैं. तो दिस इज लाइक समथिंग सो वियर्ड क्योंकि इंडिया में तो लाइक यू कांट इवन इमेजिन. मतलब इवन दो इंडिया में अभी काफी वेस्टर्न कल्चर आ चुका है और लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज नॉर्मल. बट बिना शादी के ऐसे बच्चे करके इतने इतने सालों तक रहना, आई तो हैवंट हर्ड ऑफ इट लाइक एज मच. और अगर होता भी होगा तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी ओपन. बट यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल. तो लोग शादी नहीं करते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, दे लिव टुगेदर एंड आफ्टर अ वाइल मे बी लाइक व्हेन दे टर्न 40-50 और इवन लेट 30s और उनको रियलाइज होता है कि हाँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, सो दे गेट मैरिड. सो विच इज वेरी नॉर्मल. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज वेरी नॉर्मल इज दैट पीपल आर वेरी ओपन अबाउट द you know gay and lesbians here because अभी हमारे साथ परसों एक इंसिडेंट हुआ. सो वी हैव अ एयरबीएनबी. हमारे अपार्टमेंट के जस्ट बगल वाली बालकनी जो है वो एयरबीएनबी है. सो वहाँ पे ना दे वर 3 ladies एंड दे हैड कम फॉर वेकेशन एंड ऑल. सो दे वर लिविंग इन द एयरबीएनबी. सो बेसिकली वो लोग रात को ड्रिंक कर रहे थे, 10 बजे हुए थे रात के ऐसे, एंड दे वर ड्रिंकिंग. सो अंकित वेंट टू द बालकनी and that lady just said hi to Ankit and she started talking. तो उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, so she started talking in English and she started asking कि where are you guys from, and then Ankit told कि हम लोग इंडिया से हैं and all of that. And then she also asked, oh so आप किसके साथ रह रहे हो. So Ankit ने बोला I live with my wife, and then she called me also. Then I went out and said hi and all to her. And these were 3 ladies, okay. And after a while like we were just talking and 5-10 मिनट बात करने के बाद she just told us कि वो जो दोनों बंदियां है ना वो गर्लफ्रेंड्स थी एक्चुअली आपस में. एंड शी वॉज लाइक सो ओपन अबाउट इट. तो अगर लेट्स से कि इंडिया में ऐसे कोई लेस्बियन या गे कपल होगा ना तो वो बताने में भी लोग आजकल काफी शर्माते हैं कि अरे हम तो गे हैं, क्योंकि मतलब इंडिया में बहुत जजमेंट होता है इन सब चीज़ों पे. बट यहाँ पे दीज थिंग्स आर वेरी ओपन. सो शी सेड कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड आई मेट हर थ्रू सम आई थिंक फेसबुक ग्रुप या कुछ तो एक ग्रुप उसने बोला जो विमेन का ग्रुप होता है. सो आई मेट हर थ्रू दैट एंड वी हैव कम हियर टू पार्टी एंड ऑल ऑफ दैट. So yeah, they were living together happily and it was so good to see that these guys are like so open about it. And even she told us ki I know that you guys don't like all these things. I think unko lag raha tha ki we are Indians and we are not very open about like these kind of things, but we were like nahi, nothing like that. So we just didn't want to make them फील ऑकवर्ड, तो हमने ऐसा कुछ बोला नहीं. बट यार दिस इज वेरी वेरी ओपन हियर. तो लोग बहुत ओपन है कि हाँ अगर 2 बंदे साथ में हैं तो वो डेट कर रहे हैं, 2 लड़कियां डेट कर रही हैं. सो पीपल नेवर जज एंड या दैट इज वन थिंग again which is very different from India. So I think yeah these are the top 10 culture shocks. Let me know कि आपको इसमें से सबसे ज़्यादा weird कौन सा लगा. And I also have many more actually. So let me know if you want me to make a part 2 of this video. So ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए I kept it to top 10. But I have many more actually to share with you. So let me know and I will make a part 2 of it.
and if you haven't already subscribed to my channel, please do subscribe. I will try to post videos more regularly going forward, but please do subscribe to my channel, like this video and share it with anybody who's coming to Poland and you think this will be helpful for them. And yes, I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.